ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کولکتہ سے محمد کاشف بات کر رہا ہوں. کچھ بات کرنی تھی آپ سے, ہو سکتی ہے ابھی بات؟ جی میں کولکتہ سے محمد کاشف بات کر رہا ہوں. بات کرنی تھی کچھ آپ سے, ہو سکتی ہے ابھی بات؟ جی فرمائیے. ہاں, اور سب ٹھیک ہے؟ جی یہ بات الحمدللہ. پوچھنا تھا. دراصل بیچ میں نے ابھی حال فی الحال آفتاب صدیقی کا ایک آڈیو سنا تھا, آفتاب صدیقی کا, تو اسی کے متعلق مجھے کچھ باتیں آپ سے یہ کہنی اور کچھ پوچھنی بھی ہے آپ سے. جی کہ آپ لوگ مولانا صاحب کو عامر کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. 3 فیصل جب تھے تو تینوں کو آپ فیصل مانتے تھے, صحیح ہے نا بات؟ تینوں کو آپ فیصل مانتے تھے. جب ایک گئے تو 2 کو فیصل مانتے تھے. باقی جب 2 چلے گئے, آخر میں جب مولانا صاحب بچے تو ان کو امیر ماننے میں آپ کو دقت کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ وہ امیر بنے نہیں ہیں, وہ امیر بچے ہیں. آپ کو مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, ان کو وہ امیر ماننے میں دقت کیا ہے؟ امت کے اندر اتنا فتنہ, اتنا توڑ. ہاں, آپ کے کئی آڈیو میں نے سنے, یہ توڑ ہو رہے, آپ کی رنجشیں ہو رہی ہیں, مدرسے خالی ہو گئے, مسجدوں میں توڑ ہو گیا, 2 فریق میں لوگ بٹ گئے, آپ کی جو بھائی تھے بھائی میں توڑ ہو گیا. اتنا فتنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امیر ان کو مان لینے میں دقت کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے آپ. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کولکتہ سے بات کر رہا ہوں, محمد کاشف. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ میرا یہ نمبر جو ہے یہ آپ کو کس نے دیا؟ نمبر تو کہیں سے مل جاتی ہے, آپ کے آڈیو اتنے چل رہے ہیں, نمبر کہیں سے مل, وہ آپ چھوڑ دیجیے نا. میرا سوال یہ ہے, آپ ان کو امیر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے بھائی ایسا ہے, دیکھیے ایسا آپ جو ہے. جی بولیے. دیکھیے آپ, پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کروں گا میں کہ آپ ذرا میری بات سنجیدگی سے سنیں تو انشاءاللہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے نا؟ جی تو پہلی بات مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ جو امارت شورا کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کتنی باتیں آپ جانتے ہیں؟ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا اس مسئلے میں اپنا پڑے نا, یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. 3 فیصل جب تھے تو تینوں کو فیصل مانتے تھے یا نہیں مانتے, اس کا جواب دیجیے. یہ بتائیے مجھے, یہ ہاں ٹھیک ہے, بہتر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 3 فیصل جو بنائے گئے تھے یہ 1995 میں بنائے گئے تھے مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد. آپ نے آفتاب صدیقی والی آڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس میں بھی ہم نے یہ بات پوچھی تھی. وہ آڈیو کافی پرانی ہے, 4-5 سال تقریباً پرانی آڈیو ہے, بہت شروع کی آڈیو ہے وہ. اس میں نے آفتاب صدیقی سے یہ بات پوچھی تھی لیکن اس بندے نے جواب نہیں دیا. شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ ہم نے یہ بات اس وقت بھی پوچھی تھی, آپ سے بھی یہ بات پوچھ رہا ہوں میں کہ 1995 میں جو عمارت چل رہی تھی مولانا انعام صاحب علیہ الرحمہ کی, اس عمارت ان کے انتقال کے بعد سے عمارت کے سسٹم کو ختم کر کے جو شورائیت پر نظام رکھا گیا وہ مشورے سے رکھا گیا یا بغیر مشورے کے؟ آپ مجھے بتائیے نا, مشورے سے رکھا گیا بغیر مشورے کے؟ ٹھیک ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں. نہیں علی جناب ایک بات سنیے, آپ مشورے سے رکھا گیا بغیر مشورے کے؟ آپ مجھے مشورہ کیا گیا ہے نا, میں آپ کی بات پوری سمجھ رہا ہوں. مشورے سے رکھا گیا ہے نا. مولانا انعام صاحب علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد مشورے سے یہ بات رکھی گئی, ٹھیک ہے. مشورے سے ایک بات طے کی گئی کہ عمارت نہیں ہوگی, اب شورا ہوگی. اس کے بعد سے اگر دوبارہ مشورے پر جو کام کو رکھا گیا ہے دوبارہ اگر عمارت پر رکھنا ہے تو اس کو مشورہ کرنا چاہیے یا بغیر مشورے کی عمارت کا اعلان ٹھوکنا چاہیے, یہ سوال ہے میرا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں؟ 1 فیصل 2 فیصل 3 فیصل جتنے بھی فیصل بنے وہ آپ چاہے عالمی فیصل بنے ہوں یا ملکی فیصل بنے, وہ ساری باتیں ایک طرف. میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے. جو 3 فیصل بنائے گئے تھے وہ مشورے سے بنائے گئے تھے یا بغیر مشورے کے؟ کیا اس مشورے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اگر 3 میں سے 2 مر جائیں گے تو تیسرا آٹومیٹک امیر بن جائے گا؟ اس کی کوئی صراحت ہے آپ کے پاس؟ اگر میں کوئی صراحت ہے آپ کے پاس؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. میرے بات تو آپ کی اس وجہ سے کتنے فتنے پھیل رہے ہیں, یہ غلط, یہاں آپ پھنس رہے ہیں, یہاں آپ پھنس رہے ہیں. نہیں, آپ توڑ رہے ہیں, آپ بات کو مانیے. ٹھیک ہے, اتنی بات. اچھا سنیے, پہلے پوری میری بات سن لیجیے آپ, پہلے پوری میری بات سن لیجیے انشاءاللہ. اس کو یہ جو ہے میرے پاس آٹومیٹک ریکارڈر ہے, انشاءاللہ اس کو میں چلاؤں گا. پہلی بات یہ سمجھیے آپ کہ یہ چیز مشورے سے طے ہوئی تھی کہ عمارت کو ختم کیا جائے گا, شرائط پر رکھا جائے گا. ایک عمارت جو کہ مولانا الیاس صاحب کی بھی تھی, مولانا یوسف صاحب کی بھی تھی, مولانا انعام صاحب کی بھی تھی,
तीसरे अमीर मौलाना इनाम साहब थे, उनके इंतकाल के बाद मशवरे से ये बात तय की गई, मुत्तफिका मशवरे में ये बात तय की गई कि इमारत नहीं होगी, शुरायत होगी। जब मुत्तफिका मशवरे में एक बात तय करके एक चीज को खत्म किया गया, तो अब दोबारा मुत्तफिका मशवरा होना चाहिए इमारत को लाने के लिए, न ये कि एक आदमी अपने आप से दावा ठोक दे कि मैं अमीर हूँ। अगर कहीं लिखा है कि 3 लोगों को फैसल बना दिया जा रहा है, आज 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जब 2 मर जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक अमीर बन जाएगा। इसकी सराहत अगर पूरी दुनिया में किसी के पास है तो मेरे पास लाकर के दिखा दे, मैं अभी जाके मौलाना साहब के हाथ पर बैत कर लेता हूँ। तो मेरे भाई ये सब बातें जो आपने सुनी है, नहीं अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात तो हो गई। आप कह रहे हैं हम कितना कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। आपका असल सवाल ये है कि मौलाना साहब को अमीर क्यों नहीं मानते, इस वजह से नहीं मानते, ये वजह है। इसके आगे की बात सुनिए। मुत्तफिका मशवरे में 2 बातें तय हुई थी। हाजी साहब की वीडियो, हाजी साहब की ऑडियो मौजूद है, हाजी अब्दुल वहाब साहब अली रहमा की, वो आप सुन लीजिए। मुत्तफिका मशवरे में 95 में 2 बातें तय हुई थी। एक तो ये कि इमारत नहीं होगी, एक ये कि यहाँ बैत नहीं होगी। इन दोनों मुआहिदों को मौलाना साद ने तोड़ा है, जिसकी वजह से मौलाना साद ने मुनाफिकत वाला अमल किया है। शरीयत की रूह से, हदीस की रूह से, शरीयत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में ऐसा शख्स जो मुआहिदे को तोड़ता है वो शख्स मुनाफिक कहलाता है। क्या कहलाता है मौलाना? मुनाफिक कहलाता है। ये मुनाफिकत वाला अमल है मौलाना साद का। अब आप जो कुछ भी बोले आपकी बात वैलिड नहीं है। अब मैं दलाइल की रोशनी में बात कर रहा हूँ आपसे। एक चीज मुत्तफिका मशवरे में तय हुई है, उस मुत्तफिका मशवरे की खिलाफ वर्जी करना मुनाफिकत है, जो कि मौलाना साहब ने किया है। मौलाना साहब को अमीर में आज मान लूं, आज तय कर दें, अगर बैठ करके जितने भी दावत तबलीग के बड़े हैं, ये हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने बड़े हैं, आज तय कर दें, आज मैं मान लूं। मसला ये है कि मुत्तफिका मशवरे, मौलाना साहब को बिल्कुल बड़ा मानेंगे, बिल्कुल बड़ा मानेंगे, लेकिन उसकी लिमिट है ना, उसकी हद है। मैं मौलाना इब्राहिम साहब को ही बड़ा मानता हूँ, लेकिन अमीर नहीं मानता। मौलाना अहमद लाड साहब को भी बड़ा मानता हूँ, अमीर नहीं मानता। हाजी साहब को भी बड़ा हम मानते थे, लेकिन अमीर नहीं मानते थे पूरे आलम का। मसला आप समझिए बात को। बोले साथ में उसको भी, उनको भी जोड़िए। मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब जितने बड़े आदमी है जो है वो सब अपनी जगह पर है। मैं इस पर दारुल के फतवे की बात नहीं करूंगा, किसी चीज की बात नहीं करूंगा। इमारत और शूरा का जहां तक मसला है, वहां पर आप उसूल की बात कीजिए, आप अकीदत की बात मत कीजिए कि फुला के बेटे हैं, फुला के पोते हैं। उसूल की बात कीजिए। एक आदमी उसूली एतबार से मुआहिदे को तोड़ करके अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सही है शरीयत के एतबार से? अगर बन भी गए तो उम्मत में क्या एक तोड़ तो नहीं होता ना, अगर मान लेते तो। मैं मुआहिदे की आप बन गए या नहीं बन गए की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उम्मत के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि उम्मत के अंदर तोड़ और जोड़ की बात, तो बच जाता। वो ठीक है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। किसकी जिद से फितना फैल रहा है मौलाना? किसकी जिद से फितना फैल रहा है? अगर बन गए तो फितना फैल रहा है। अच्छा, आप तबलीगी जमात, आप जमात में जाते हैं? जी जाता हूँ। जाते हैं? अच्छा, हाँ जी, आप जमात में जाते हैं। आपके मस्जिद से मिसाल के तौर पे एक जमात बन रही है, उस जमात के अंदर 11 लोग हैं, उसके अंदर आप भी हैं। 5 लोग ये कहते हैं कि अगर, आपका नाम क्या है? काशिफ। 5 लोग यूँ कहते हैं कि आप काशिफ भाई अगर अमीर बनेंगे तो हम जमात में नहीं जाएंगे। 5 लोग कहते हैं। 5 लोग कहते हैं काशिफ भाई अमीर बने न बने हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अमीर बने हम जमात में जाएंगे। लेकिन 5 लोग ये कहते हैं कि अगर काशिफ साहब अमीर बनेंगे तो हम जमात में नहीं जाएंगे। तो आप क्या करोगे? अमीर बनने की जिद करोगे? मौलाना आप बात तो नहीं, आप मेरी बात को जवाब दीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। मौलाना आप बात, अगर 5 लोग आपकी जमात में इस बात की जिद करें, अगर सुनिए एक मिनट, आपकी मस्जिद के, आपकी जमात के 5 साथी अगर इस बात की जिद करें कि अगर आप अमीर बनोगे तो हम जमात में नहीं जाएंगे, तो आप अमीर बनने की जिद करोगे या साथियों को जोड़ोगे? बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। मौलाना आप बात को घुमा रहे हैं, एक फर्द की जिद से काम हो रहा है। मौलाना आप बात को घुमाते हैं, आप अक्सर ही आप हकीकत में बात नहीं, आप बात को देखिए ऐसा है, जितनी ऑडियो में बात को घुमा रहे। मेरा सवाल ये है ही नहीं, आप यहाँ वहाँ का मिसाल, मेरा सवाल आपसे है, आप मान लीजिए। जी हाँ, मान लीजिए जी। ये क्या सवाल जाएगा? क्या मान लीजिए? अमीर मान लीजिए, मुआहिदे को तोड़कर, जिस मुआहिदे पर खुद मौलाना साद साहब ने, जिस मुआहिदे को खुद मौलाना साहब की बात कर रहे हैं। मौलाना आप जो उम्मत को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि उम्मत जुड़ जाएगा, आप मान लीजिए इससे उम्मत जुड़ जाएगा। मौलाना है, ठीक है, आप पहले बोल लीजिए, मैं कुछ अर्ज करूँ, मैं कुछ कहूँ। साथ की जिम्मेदारी
मौलाना साहब की ज़िम्मेदारी है, आप भी जोड़ लीजिए, आप भी तो जोड़ सकते हैं मानकर। नहीं, मैं आपसे ऑडियो चलाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल चलाना बंद कर दीजिए। बंद कर चुका हूँ भाई, बंद कर चुका हूँ, लेकिन आपकी चलानी पड़ेगी ये वाली, समझ रहे हैं आप मेरी बात सुनिए आप। मैं को गलत आप बात को घुमा रहे, आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब उम्मत को तोड़े, मुआहिदा को तोड़े, जो भी तोड़े, ठीक है ना, जो भी तोड़े, वो उनकी जो भी कुछ भी हुआ। नहीं, मेरी बात तो सुनिए मौलाना, आप हंसिए मत, हकीकत को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो जोड़ सकते थे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए उनको, आपका भी हक बनता है कि उम्मत को जोड़ना। मेरे भाई, मेरे प्यारे, अमीर मान लेंगे, उम्र टूट जाए, मेरे भाई, तो बच जाएगा ना। मेरे भाई, मेरे प्यारे, एक बात बहुत ध्यान आपके ऑडियो से, आपकी बहुत ऑडियो मैं कुछ अर्ज करूं, कुछ कहूं, यहाँ पे कहते रहिए। बोलिए। देखिए मेरे भाई, आप ही को तो सुन रहे हैं जी, बोलिए मेरे भाई बात सुनिए। देखिए ऐसा है कि मौलाना साहब को अमीर बनाना या किसी भी फर्द को अमीर बनाना, ये उसूल से होगा या बेउसूली से होगा, वो बताइए आप। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर ठीक कुछ भी हुआ, उम्मत टूटने का, एक उम्मत तो जुड़, कुछ भी हुआ से नहीं होता है मेरे भाई, कुछ भी हुआ से नहीं होता है मौलाना। उम्मत 2015 में, एक मिनट सुनिए, बात सुनिए, आप इतनी सारी बातें करें, मेरी बात सुनिए। कोई भी काम दावत और तबलीग के मुतय्यन करदा उसूल से होगा या अपनी मनमानी होगा मेरे भाई, मनमानी नहीं होगा। जो उसूल तय किया गया है उस उसूल के दायरे में रहते हुए होगा। आप कह रहे हैं उसको छोड़ो, अगर सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो बेउसूली होगी, फितना अंगेजी होगी, नहीं समझ रहे हो बात? चल रहा था ना, मैं ये कह रहा हूँ, सालों से ये चल रहा था ना, सारे लोग तो वहीं थे, क्यों निकले? मान लेते अमीर, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। उनको अमीर मान लेंगे आप तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे आप है ना मेरे भाई, अब आप बरेली वाली जिद कर रहे हो, अमीर मान लो, अमीर मान लो, अमीर मान लो। मैं पूछ रहा हूँ किस दलील से मानो, तो आप नहीं मान रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुआहिदे के खिलाफ वर्जी, मान लीजिए मेरे भाई, उम्मत जुड़ेगी किस चीज पर? उसूल पर जुड़ेगी, बेउसूली पर जुड़ेगी? जो मुआहिदा तय हुआ है 1995 में, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए, ये आप कह रहे हो? मुआहिदे की खिलाफ वर्जी शरीयत में जायज है? अजीब मसला है आपका। आप अपनी एक बात में अटक रहे हो, मान लो, अमीर मान लो, अमीर मान लो, अमीर मान ले, एक नहीं 10 बार मान ले, लेकिन वो चीज उसूली एतबार से दुरुस्त होनी चाहिए। जो मुआहिदा 1995 में तय किया गया है, जो मौलाना साहब ने खुद जिस बात को तय करवाया है, ये बताइए कि 1995 के मशवरे में ये राय किसने दी थी कि यहाँ पर इमारत न हो और बैत न हो? ये किसने राय दी थी, पता है आपको? बोलिए, आप बोलिए। आपको नहीं, आप बताइए ना, आप जिद कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाजी अब्दुल वहाब साहब की ऑडियो है, सुनो मौलाना, बात सुनिए आप। हाजी अब्दुल वहाब साहब अली रहमत की साफ ऑडियो मौजूद है यूट्यूब पर कि 95 में ये बात मौलाना साहब ने कही मशवरे के अंदर कि अब यहाँ पर इमारत ना हो, बल्कि अब मशवरे के एतबार से ही काम चले। ये मौलाना साहब की राय थी। एक बात जब मुत्तफिका मशवरे में तय हो गई, उसकी मुखालफत मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं? खुद मशवरा दिया, खुद मुखालफत कर रहे हैं। ये असल मसला है। इस पे आप सोचिए, मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस पर आप सोचिए, जज्बाती होकर के नहीं, शरीयत की रोशनी में सोचिए, संजीदगी से सोचिए। बस मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।